Now we have with us Professor Dr. Neeti Jain. Dr. Neeti Jain is a doctorate in economics and specialized in microeconomics, foreign economics, tribal economics, labor economics, and development economics. She has more than 25 years of teaching experience and 22 years of research experience. She has contributed many research papers in English and in Hindi in reputed research journals and books. She is currently working as a professor at Indira Gandhi National Tribal University, Central University. She is a member of the Executive Council, court member, Research Degree Committee, Academic Council, Board of Studies, Board of Studies. She is a chairperson of Departmental Research Committee, Board of Studies of Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, MP. She has been organized 4 national seminars. She has published 3 books, 1 authored and 2 edited books. She has completed project of UGC, especially focusing on tribal economy of Madhya Pradesh. Dr. Niti is going to give different direction to the webinar as she focuses on agriculture sector, tribal community of the country, and give suggestions for the rural development. She is going to speak on the topic clout in Indian agriculture, tribal communities, and rural development, prior and subsequent COVID-19 phase. We welcome you, ma'am, and we are eager to listen about your agricultural sector because Indian economy is still an agrarian economy, but it is contributing quite less in the GDP. So definitely you are going to enlighten us with certain suggestions so that we can get valuable knowledge about this topic. Welcome, ma'am. A warm good morning to esteemed personages. First and foremost, I proffer my greeting to Honorable Vice Chancellor Professor Ashok Mittal Sir, distinguished personality at national and international level, notable economist, Swab, to the Director of TIAS, whose steward gave structure to the program and organized a first basic number of symposia. Ms. Vanda Raghav and the staff are especially thanked and complimented for their enormous and high quality support. My compliments to participants for all their prudent input and for many fruitful discussions and meaningful interaction. The themes we are going to discuss are very timely in the circumstances of this pandemic, which is having a major impact on the future, not just from the virus itself, but because of its impacts on the economy, employment, education, and the overall health system, big natural disaster, which many member countries have also experienced in recent times, can of themselves trigger socioeconomic changes. It is my hope that this conference will provide plenty of opportunity for us to exchange useful views, ideas, and experience. It is my hope that this conference will provide plenty of opportunity for us to exchange useful views, ideas, and experience which will influence our future activity as well as our present work. Your voice and engagement are needed more than ever, particularly as the world responds to this unprecedented crisis. अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन मोड से जुड़े और उन्होंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपने व्यूज़ रखे जो उन्होंने मैक्रो लेवल की स्टडी प्रेजेंट की और हम सभी ने डिस्कस किया, नेचुरली वो बहुत ही ज़्यादा हम सभी के लिए बेनिफिशियल है और मैं चाहूँगी कि निश्चित रूप से प्रोफेसर परमेश्वर, प्रोफेसर नरेश गौतम, डॉक्टर अशोक मित्तल सर और डॉक्टर अजय, डॉक्टर जेवीएम सर, आपने जितने भी यहाँ डिस्कशंस किए निश्चित रूप से वो बहुत ही सराहनीय हैं, लेकिन मैं इससे हट करके कुछ बात कहना चाहूँगी। वो इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी को मैं बिलोंग करती हूँ
वो बेसिकली नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है और टोटली रिमोट एरिया में है और ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, ट्राइबल सेंट्रिक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में 60 to 65% डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर की है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% है। उसके बावजूद भी जब पैंडेमिक 19 कोविड-19 का दौर आया, उस दौर के दौरान ये देखा गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने फार्मर्स हैं, ट्राइबल हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो जिस रोटी के लिए माइग्रेट होकर के सिटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में गए थे, उनको उस रोटी को छोड़ कर के वापस अपने मूल स्थान पर आना पड़ा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि जबकि 8 करोड़ पॉपुलेशन हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसके ऊपर 20,000 रुपीज़ जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया। उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि इनका जो अभी सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, वो वंचित वर्ग है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है। डेवलपमेंट होना बाकी है, इनके लिए काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के कारण हम हमेशा एक ही बात कहते रहेंगे कि हमको ट्राइबल पर प्रोजेक्ट करना है, रूरल एरिया पर प्रोजेक्ट करना है क्योंकि इनका डेवलपमेंट बाकी है, एग्रीकल्चर फार्मर पर हमको करना है, जबकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमको कोविड-19 में आज 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं हमको, उसके बावजूद भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया है। आज तक की डेट में हम खाने के लिए या खाद्यान्न के लिए, फूड के लिए, मिल्क के लिए कभी परेशान नहीं हुए। जबकि वो फार्मर्स जो कि अपने टाइम पर, क्योंकि ये सीज़नल है उनके लिए, ये ऑक्यूपेशन उनके लिए परमानेंट नहीं होता है, ये सीज़नल होता है। सीज़नल होने के बाद ये अपने काम की तलाश के लिए दूसरे शहर में जाते हैं और दूसरे शहर में जाने के बाद में कोविड-19 का दौर आता है। कोविड-19 के दौर और ये कोविड-19 क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे यदि हम हिस्ट्री देखते हैं तो लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन जब हमारे यहाँ 91 में हुआ, तो हमको लगा कि हमको ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म मिला और निश्चित रूप से हमने उस समय नेट की दुनिया में या टर्शरी सेक्टर्स से सर्विस सेक्टर में हमने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की और इन्वेस्ट करने की और पूरा फ़ोकस हमारा इंडिया का सिर्फ़ उसी सेक्टर के लिए चला गया। आज उसी का अंजाम हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन मोड से ही पॉसिबल है, जबकि कोविड-19 में हम सारे सेक्टर में सभी लोग इनसिक्योर्ड हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मैं 2 बातें ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम फिज़िकली और साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड हो गए। लेकिन यदि हम एग्रीकल्चर फार्मर की बात करते हैं, ट्राइबल लेबर की बात करते हैं, ट्राइबल पीपल की बात करते हैं, रूरल पीपल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है और कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है, वो उस पर नहीं हुआ। प्रोफ़ेसर गौतम ने काफ़ी चीज़ों को टच किया जो कि मेरा एरिया है फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का। तो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एक ऐसा है जिस अंचल में मैं बैठी हूँ, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमारे पास में मेडिसिनल प्लांट्स हैं और यदि हम कहीं और नहीं जाते हैं, यदि हम मेट्रोज़ में दिल्ली में, बैंगलोर, हैदराबाद जहाँ भी बैठे हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा किचन होता है, वही हमारा बहुत बड़ा लैब होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जान है तो जहान है। मोदी जी ने अपने संदेश में कई बारी कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबन बनो और हमको हर किसी कीमत पर उन लोगों को जोड़ देना है जो कि अ, जिनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों को वो उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। कोविड-19 के दौर के लिए हम सभी लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। हालाँकि डब्ल्यूएचओ ने दिसंबर 2019 में डिक्लेयर किया था कि ये वायरस ऐसा वायरस है कि इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
यदि उसी समय हमसे शायद थोड़ी एक मिस्टेक हो गई गवर्नमेंट से, यदि होता कि कोविड-19 के लिए हम प्रिकॉशन ले चुके होते और जो आइसोलेशन की बात हमने माइग्रेशन के दौरान कही, जब बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ कोरोना, तो सभी लोगों को के लिए हमारे दिमाग में आया कि आइसोलेशन सेंटर होना चाहिए, लोगों से दूर होना चाहिए, ये लोग बहुत जल्दी स्प्रेड कर देंगे और फिर कपड़े में इतना होगा तो प्लास्टिक में इतने आर्ट्स का होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें बिल्कुल व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में और टीवी से, सभी जगह से बहुत अच्छे से हो रही थी। लेकिन फिर भी जिस अंचल में मैं बैठी हूँ और आज की डेट में भी मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। मैं डिपार्टमेंट में हूँ और अभी यूनिवर्सिटी में अपने किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में काम करने के लिए जाऊँगी। मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे प्लांट्स हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा एनरिच करने वाले हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ हमारे यहाँ एक्चुअली है, उस चीज़ पर हम स्टडी नहीं कर रहे हैं और स्टडी हम उन बातों के लिए कर रहे हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन होने में काफ़ी टाइम है। हम यदि किचन की बात करते हैं, जिस किचन की बात अभी मैंने 2 मिनट पहले कही थी, तो हम देखते हैं कि यदि किसी के पास में कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम ये कह देते हैं कि हल्दी और काली मिर्च आप यूज़ कर लीजिएगा, दालचीनी यूज़ कर लीजिएगा, डेली आप उसका काढ़ा पीजिए, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। यहाँ पर जितने भी ट्राइब्स हैं, वो खाने में से बहुत हेल्दी फूड लेते हैं, कुदकी का यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। हम यहाँ पर जितने भी फूड खा रहे हैं इंडिया में, और इंडिया की जो बेसिकली है, यदि हम बात ना करें, हम चाइनीज़ फूड की बात नहीं करते हैं, हम किसी दूसरे फूड की बात नहीं करते हैं और हम सिर्फ इंडियन फूड्स की बात करते हैं बेसिकली, जो कि हमारे गांव का है, तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। हम गिलोय का डेली सेवन करते हैं, गिलोय का सेवन करने से हमको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है। हमारे पास में नीम है, एंटीबायोटिक है, हल्दी है, एंटीबायोटिक है, लौंग हम खाते हैं तो उससे हमको बहुत एक अलग इफेक्ट मिलता है, जीरा का हम यूज़ करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारी यूनिवर्सिटी जो है शहद का ब्रांडिंग और पैकिंग कर रही है, और बहुत अच्छी शहद यहाँ पर है यूनिवर्सिटी में उपलब्ध। यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग बहुत अच्छी शहद है। तो जितने भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे लिए कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि यदि आपको कोविड हो गया है तो आप विटामिन सी की गोलियां खा लीजिएगा, लेकिन यहाँ के लोगों को विटामिन सी खाने की जरूरत नहीं है। आंवला हमको नेचर से मिल रहा है, हम डायरेक्ट आंवला खा रहे हैं, हम च्यवनप्राश नहीं खा रहे हैं। हाँ, लेकिन इनको ओरिजिनल प्राइस इसलिए नहीं मिल पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये लोग रॉ मटेरियल डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं और मार्केट में लेकर के आ जाते हैं, जिसकी वैल्यू उनको नहीं मिल पाती है जो इनको मिलना चाहिए। लेकिन वही जब च्यवनप्राश के फॉर्म में जाता है तो निश्चित रूप से उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है और हमको उसकी सही कीमत मिल जाती है। अब रहा सवाल इस बात का कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं और जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज उनको कैसे मिले, उनकी सही रियल कॉस्ट उनको कैसे मिले, इस बात पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अभी छत्तीसगढ़ में शायद आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक व्यक्ति, एक टीचर हैं, उन्होंने बोर्ड का यूज़ नहीं किया, उन्होंने सोशल डिस्टेंस को फॉलो किया और अपने दीवार पर, घर की दीवार पर पेंट किया और उसमें उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग शुरू की। क्योंकि मैं यहाँ प्रॉब्लम देख रही हूँ कि ऑनलाइन मोड पर जैसे मुझे अभी 1 घंटा लगा कनेक्ट होने में, तो मैं ये देख रही हूँ कि ऑनलाइन मोड हमारे लिए आसान नहीं है और 70% पॉपुलेशन जो है, वो रूरल एरिया में रह रही है। डाटा कितना भी सस्ता क्यों ना हो गया हो, आटा कितना भी महंगा क्यों ना हो गया हो, लेकिन आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है डेटा की। यदि डेटा ही हमारे पास में नहीं होगा तो हम उस एजुकेशन को अर्न नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ ऑल्टरनेट मोड जरूर करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति हमारे पास में बन पाती ब्लेंडेड मोड की। रीजन उसका ये है क्योंकि हम जब कोविड-19 आया तो उसी समय जो आइसोलेशन सेंटर है किसी डेजर्ट एरिया में यदि हम बना देते, तो निश्चित रूप से जो भी लोग हमारे इंडिया को छोड़ कर के बाहर फॉरेन में सर्विस करने के लिए गए थे, वो वापस आए वापस।
यदि वो वापस आए, ये ठीक है, अच्छी बात है, उनको घर में आना चाहिए, लेकिन जो 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड है, उनके लिए किसी डेजर्ट एरिया में बना देना चाहिए था, तो निश्चित रूप से कम लोगों को जो कि कोविड पॉजिटिव थे, वो आइसोलेशन में रह जाते और उनके लिए लिमिटेड डॉक्टर से बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती, हेल्दी फूड उनको मिल जाता और वो ठीक हो जाते। निश्चित रूप से उसके बाद वो हमारे सभी लोगों के बीच में आ जाते हैं। तो आइसोलेशन सेंटर बनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आइसोलेशन सेंटर ना होने की वजह से ही हमको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, और दूसरी बात मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जो भारत आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी करते हैं और उन्होंने कहा था कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो स्किल की बात करती है। रिस्किल, यहाँ पर स्किल के साथ में 2 टर्म और यूज़ करना चाहती हूँ, स्किल, रीस्किल और अपस्किल। यदि हम स्किल का सही यूज़ करेंगे, नॉलेज का सही यूज़ करेंगे, इनोवेशन का सही यूज़ करेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, पुनरुद्धार आएगा, पुनरुत्थान होगा और हमारी इकोनॉमी जो है पुनर्जीवित होगी और तब कहीं जाकर के हमारे आज के वेबिनार का सही मीनिंग जो है वो हमारे सामने आ पाएगा। आज भारत जिस स्थिति में क्या है, जो डेटा हमारे सामने आए हैं, मैक्रो लेवल की स्टडी आपने काफ़ी अच्छी की है, डेटा सारे आपने दिए हैं, तो उस विषय में बात नहीं करूँगी। तो वो डेटा हमको कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मन में इनसिक्योरिटी आ रही है। लेकिन हमारी जो प्लानिंग है सारे सेक्टर्स को लेकर के और सारे इकोनॉमिस्ट और मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो मैनेजमेंट करने की बात कर रहे हैं। पर मुझे ये लग रहा है कि जिस रोटी को छोड़ कर के आए थे, जो फार्मर या वो व्यक्ति जो माइग्रेट होकर के हज़ारों किलोमीटर दूर गए थे और पैदल-पैदल आए, ये सभी लोगों ने टीवी में देखा। और जिस कंडीशन में वो वापस आए, उस समय उनके हाथ में बच्चे भी थे और उनके पास में कोई उनकी सेविंग नहीं थी। उस ना सेविंग होने के बावजूद भी वो अपनी हेल्थ के को बचाते हुए कि हमको अपने आप को अलग रखना है, हमें यदि हम ज़िंदा रहेंगे, तो ही हम कुछ कर पाएँगे। हमारा सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम सर्वाइव नहीं करेंगे, तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से हमको लोकल के लिए वोकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यदि हम लोकल के लिए वोकल होंगे, तभी हम ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पर आएँगे। आज इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि निश्चित रूप से हम ग्लोबल लेवल पर पेटेंट करा सकते हैं और ग्लोबल लेवल पर हम हमारा नाम इंडिया का हो सकता है और निश्चित रूप से जो कोविड-19 के वैक्सीन के लिए हम भी इनसिक्योर्ड हैं, वो इनसिक्योरिटी होती ही नहीं, यदि हमारे यहाँ कोविड आता ही नहीं और हमारे पास पूरा था। लेकिन अब हमारे लिए ये है कि स्कोप क्या है, हम क्या पॉलिसीज़ बना सकते हैं, जबकि हमारी इकोनॉमी वी शेप्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि हम मैक्रो लेवल की एक समूह की बात नहीं करें, डिपेंडेंसी का रेशियो जो है वो थोड़ा कम करें। जो हंगर इंडेक्स है, वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है, उसका ग्राफ काफ़ी ऊपर जाते जा रहा है। तो निश्चित रूप से यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कुछ-कुछ काम करेगा, तो डिपेंडेंसी का शेप कम होगा, इनकम जनरेट होती जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और निश्चित रूप से हमारे देश की स्थिति को सुधार होता जाएगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखा कि मेरे क्लोज में ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। उस प्रॉब्लम में कोविड के टाइम में किसी मेड सर्वेंट का बुलाना पॉसिबल नहीं था। मेरा नेटिव प्लेस एक्चुअली जबलपुर है, तो वहाँ बुलाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और ऐसी स्थिति में जबकि मेड को नहीं बुला सकते, जबकि हम अपने खाना किसी से हम नहीं बनवा सकते, उस समय लोगों ने काम करना शुरू किया कि हम कोविड पॉज़िटिव हैं और हम टिफ़िन आपके घर में प्रोवाइड कराते हैं और हमारे घर में टिफ़िन आया। तो इस तरीके से कहने का मेरा ये मतलब है कि यदि एक व्यक्ति इतना ज़्यादा चैतन्य होता चला जाएगा, जागृत होता चला जाएगा कि हमारा क्या सोशल और हमारा क्या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो निश्चित रूप से हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, वो काफ़ी ऊपर जाएगा। हम यहाँ पर किसी भी बात को डेटा बेस्ड नहीं कहना चाह रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि हमारी जो भी टेक्नोलॉज़ी है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है और मोदी जी ने जितनी भी बात की है, वो लेबर के लिए, स्किल के लिए, इनोवेशन की बात की है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी क्योंकि कहा जाता है कि वो शोध नहीं होता है जिसका बोध नहीं होता है। रिसर्च की आवश्यकता हमारे लिए है जब तक कि वो क्रिएटिव हाँ नहीं
है। यदि उसमें क्रिएटिविटी है तो उस रिसर्च वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अंक विद्या से लेकर यानी प्राइमरी पाठशाला, प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक की बात की है। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो एनरोलमेंट हुआ है प्राइमरी में वो 26.3% है। 2030 में जाकर के इसके लिए कहा जाता है कि हायर एजुकेशन जो है 50% हो सकता है। तो यदि ये एजुकेशन का हमारा लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा, वो लोग जो कि वंचित रह रहे हैं, अभी तो हम नेटवर्क वाले टाइम से तो बोल ही नहीं सकते हैं, कारण ये है कि उसको बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं कि स्टूडेंट प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है। जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो पैनल के बीच में हो रहे हैं और हमारी बातें जो है वो ऑनलाइन तो जा रही है, लेवल पर जिस रूट पर जाना चाहिए, जहां काम होना चाहिए, इनकम जनरेट होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हमको अभी लैकुना दिखाई दे रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज्यादा हेल्प कर रही है और इनके लिए इतनी स्कीम्स फॉलो कर रही है, दे रही है, लेकिन क्या कारण है सिस्टम का जिसके कारण वहां तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ तक कि ग्राम सेवक, यहाँ लोकल की मैं बात करूं, सेवक हैं, उनको ये कहा जाता है कि जितने भी फार्मर्स होते हैं, जो हमारे कृषक हैं, ये सारे के सारे कृषक जो हैं, इनको आप एजुकेट करिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाए, मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सिस्टम की कि ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। सेकेंड, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात यदि करते हैं तो ट्रैक्टर के लिए यदि उनको लोन मिलता है तो जो मैनेजर है वो 2% उनको देना होता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि लोन पूरा जो मिल रहा है फार्मर के लिए मिल रहा है, 2% जो हम बैंक मैनेजर को उनको देना पड़ता है क्योंकि उनके पास में वो नॉलेज नहीं है। उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो ट्रैक्टर लेना, यदि वो ट्रैक्टर नहीं लेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर मेरा ये कहना है कि हमको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 की बात कही गई है कि डिग्री डिप्लोमा लेने के बावजूद भी यदि वो किसी काम में चला जाता है और हो सकता है कि उससे वो सेटिस्फाइड ना हो, उसको अपॉर्चुनिटी कहीं और अच्छी नजर आती हो, तो निश्चित रूप से वो ये कर सकता है कि वो अपने कोर्स को और आगे कर सकता है। क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है और ये जो जैसे डिजिटल लॉकर होता है, वैसे उसके क्रेडिट भी जो है वो सारे के सारे सेव होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमको अपने सिद्धि से संकल्प की ओर जाना होगा। हमको निश्चित रूप से समग्र रूप से सोचना होगा, समेकित रूप से सोचना होगा, समावेशित होना पड़ेगा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करनी होगी। तब कहीं जाकर के हम किसी एक ऐसे निर्णय पर पहुंच पाएंगे और भारत को परिष्कृत और चमत्कृत रूप में देख पाएंगे। फिर मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जो आंगनबाड़ी में जो महिलाएं लगी हुई हैं या जिनके पास में काम नहीं है, जो एनजीओ चला रहे हैं, मैंने ये भी देखा कि मैं जैन हूँ, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, मतलब जो प्रत्येक जीव है उसमें जीवन है, तो हमें किसी भी प्रकार से उसको हानि नहीं पहुंचानी है। और आज हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा, हम कहते हैं कि वेजिटेबल्स तो खाते हैं तो उसमें भी तो जीव हिंसा होती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो 15 mm का जो कोविड है, जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस जो है, ये 15 mm का वायरस है, ये हर किसी को उसने इतना इनसिक्योर बना दिया है कि इससे हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमको अपनी संस्कृति को, हमको अपने कल्चर को, हमारे वैल्यूज को, हमारी नैतिकता को जिंदा रखना है। यदि हम जब तक चैतन्य नहीं होंगे, हमारी चेतना प्रशस्त नहीं होगी, तब तक ये सारी चीजें संभव नहीं होगी। तो जो चीज हमारे पास है, जो मूल्य हमारे पास है, जो संस्कृति हमारे पास है, जो धरोहर हमको विरासत में मिली हुई है, चाहे वो हम आयुर्वेद के विशद वर्णन की बात कर लें, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता की बात कर लें, तो निश्चित रूप से हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ हमको उनको मार्केटिंग दिलाने की जरूरत है। चूंकि आज टियाज जो है बहुत बड़ा वेबिनार करा रहा है पॉलिसी को लेकर के, तो मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट होगा कि पॉलिसी में कुछ इस प्रकार की चीजों को जरूर लेकर के आया जाए, जिससे कि जो लोग आज तक की डेट में वंचित हो रहे हैं, लेकिन वंचित होने के बावजूद भी कोरोना से उन पर इफेक्ट नहीं हुआ है और वो आज भी सेफ हैं और सेव हैं, सुरक्षित हैं और आज भी वो खड़े हुए हैं
आम जनता के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि अनाज नहीं होगा, कृषक नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, तो हम सबका जिंदा रहना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से जो भी पॉलिसीज होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि उनकी बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली जो फार्मर हैं, ट्राइब्स हैं और रूरल एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक लास्ट में और बात कहना चाहती हूँ कि वो लोग जो कि माइग्रेट होकर के गए थे और वापस जब वो आए तब देख रहे थे कि जो फसल है, क्रॉप्स हैं, वो काफ़ी खड़ी हुई थी। और वो दौर ऐसा था कि उस समय यदि उनको वहीं काम दिला दिया जाता तो निश्चित रूप से क्रॉप जो है उनकी कटिंग भी हो जाती और उनके मन में जो इनसिक्योरिटी आई थी वो भी नहीं होता, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता और प्रोडक्शन हमारा और ज़्यादा अच्छा हो जाता। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है टोमेटो का, पोटैटो का। तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे जो आलू हैं और टमाटर हैं ये फिक रहे हैं। तो क्यों फिक रहे हैं? तो हमको क्या करना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं तो हमको ये करना चाहिए कि वहाँ पर एक छोटी इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए कि जितना भी हमारे पास में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ है तो हम टोमेटो से टोमेटो सूप बना लेते हैं। हम यदि पोटैटो हमारे बेकार हो रहे हैं तो हम चिप्स बना लेते हैं और उसको हम सेल करते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं ये कहूँगी फिर भी कि घड़ा भरने की बात हम तभी कहेंगे जब हम बूंद बूंद करके घड़े को भरने का एक कौवे के तरीके से प्रयास करेंगे। जिसको प्यास लगी थी तो उसने अपनी चोंच में कंकड़ लेकर के उस मटके में डाल रहा था, पानी ऊपर आया और उसने अपनी प्यास को बुझा करके वो उड़ गया। ठीक उसी प्रकार से मैं कहना चाहती हूँ यदि इकोनॉमी में वो सेक्टर जो कि इग्नोर्ड है, जिस पर कि इतना ज्यादा फोकस नहीं एक्चुअल में नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट कर रही है लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ और जो अभी जो एजुकेशन प्रोफेसर परमेश्वर जी से, डॉक्टर परमेश्वर सर से मेरा रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन में इस तरीके की चीजों को ऐड जरूर करना चाहिए। जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है वो सैद्धांतिक नहीं है बल्कि वो व्यवहारिक है। थेरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा मिल जाता है पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लास्ट में सिर्फ मैं इन सभी लोगों से यही कहूंगी कि सभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं और निश्चित रूप से यदि हम ये सारी चीजों को अडॉप्ट करेंगे तो जो वी शेप्ड इकोनॉमी हुई है उसको हम कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां और आपने इतना धैर्यपूर्वक मुझे सुना इसके लिए सादर धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Dr. Niti. And you have focused lot of things. और जिस तरीके से आपने फोकस किया कि कैसे स्किल को रीस्किल और रीस्किल को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है. And also you have focus on that we have to go on local to vocal and then we can be a global. It was a very enlightened speech from you. You have highlighted और आपने जिस तरीके से फार्मर्स के रिलेटेड बात करी ये बिल्कुल फैक्ट है कि फार्मर की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी इकोनॉमी को अपग्रेड करना है तो. Also you have हाईलाइटेड कि किस तरीके से हमारे घर के अंदर जो चीज़ें हैं हम अपने खान पान को बदल कर हम इस कोविड से बच सकते हैं. And thank you very much on focusing on the organic farming. Thank you, madam. You have focused lot of things and it was a very informative session for each and everyone. जो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका विवरण किया और हम लोगों को एक्सप्लेन किया. I think a lot of people has understand about that how we can be protect ourselves through our kitchen. Thank you very much, madam.